Hello friends, welcome to our channel Maths Battlefield by Ajay Yadav. जय हिंद दोस्तों. Okay, let's start with our new topic, that is substitution method, exercise 3.3. So first of all, let us know what is substitution method. ठीक है, we will not go into the theory part. ठीक है, I am just explaining you with the help of an example. For example, we have two equation. ठीक है, हमारे पास pair of linear equations है. Let's say 8x plus y equals to 12. एक इक्वेशन ये है, right? And the second equation is, let's say, x minus y equals to 4, right? Now, how we have to proceed for this question, for solving these question by substitution method? ठीक है, हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन substitution method से. लिसन वेरी केयरफुली कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क कैसे करता है. हमारे पास दो इक्वेशन होंगी. हम फर्स्ट इक्वेशन में से, राइट, फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालेंगे. दैट मींस y इन टर्म्स ऑफ x. आप x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ कुछ भी निकाल सकते हो, बट वी विल ऑलवेज गो फॉर y इन टर्म्स ऑफ x. और जैसी y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, वो वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, राइट. सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. आफ्टर दैट वो ये सेकेंड इक्वेशन अब दो वेरिएबल में नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल में हो जाएगा, राइट. और उसको सॉल्व करेंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और उस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, ऑफ वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल इसमें किससे वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और इस x की वैल्यू को उठाकर हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में. तो यहां x की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y, right? So this method is called substitution method. Why? Because हम यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, और यहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट करते हैं, जिससे कि सेकंड वेरिएबल निकल जाए, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो बिफोर प्रोसीडिंग, जस्ट राइट डाउन वन नोट फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड. व्हाट दैट नोट इज, if while solving a question by substitution, अगर हम substitution method से solve कर रहे हैं और by chance कुछ ये दो केस आ जाए, right? So you need to understand what that means. Note that if while solving you get, what do you get? LHS equals to RHS, right? अगर बाई चांस आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और LHS RHS इक्वल आ जाए, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 1 आ जाए, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाए, 5 इक्वल्स टू 5 आ जाए, दैट मीन्स व्हाट, देन द इक्वेशन हैज infinitely many solutions. Then the equation has infinitely many solutions. Then the equation has infinitely many solutions, right? And the next point is, if while solving you get LHS not equals to RHS, right? Then the equation has no solution, right? Then the equation has no solution. Why? For example, अगर ऐसा कुछ आता है 0 equals to 5, we very well know कि 0 कभी भी 5 के इक्वल नहीं होता. That means, ठीक है, such kind of pair of linear equations has no solution. And the case in which LHS equals to RHS, in that case the pair of linear equation has infinitely many solutions, right? Okay, note it down. ठीक है. Now let's come to the exercise 3.3. Now let us understand how to solve a given question by the substitution method. Now, do remember exercise 3.3 is based on substitution method, 3.4 is based on elimination method, and 3.5 is based on
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. So, okay. Now, exercise 3.3 question number first. What is being said? Solve the following pair of linear equation by substitution method. ठीक है, one we will solve a very simple question and the one with the difficult one, right? For example, question number first part. What is being said? What are the two equations? X plus y equals to 14 and x minus y equals to 4. Name this as equation 1 and name this as equation 2. Now what we will do? Just look at the presentation how we do this. First of all, taking equation 1. Now we will find y in terms of x, right? When we will find, now the value of y will come, shift this x that side. So this will be 14 minus x, right? After that, what you will write? Write the word substitute this value, right? Name this as equation 3, right? Now this value of y we will put in equation 2. Substitute value of y in equation 2, right? So this shall be x. So in equation 2, put the value of y. First of all, here it is x minus. What is the value of y? This value of y you will put here. This is 14 minus x. And you can make the bracket also because minus sign is there outside 4. Now x take this minus sign inside, minus 14 and minus plus x equals to 4 xx 2x, and this minus 14 will go that side and become plus 14, and 2x equals to 4 plus 14 is 18, and the value of x is how much? 9, right? After this, you can put a circle on this. After this we will write. Now this value of x we will put in equation 3, right? So substitute value of x in equation 3, right? So we will put the value of x here. So y equals to 14 minus 9. So y equals to how much? 5, right? So this is your value of x and y, and this is the final answer, right? So this is the method to solve pair of linear equation by substitution method. Now come to question number first, third part. Now the first equation is 0.2x plus 0.3y equals to 1.3, and the second equation is 0.4x plus 0.55 equals to 2.3, right? Now we can solve this question by previous same procedure, but it will become little lengthy. So before solving by that method, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे? Just have a look. हम लोग इस डेसिमल को हटाएंगे यहाँ पर, तो it will come 2 by 10x प्लस, एंड ये हो जाएगा 3 by 10y equals to 13 by 10, राइट? अब ये 10 इसके डिनोमिनेटर में भी है, 10 इसके डिनोमिनेटर में, राइट? सो अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट देखें तो हम लोग क्या हम पूरे पे लगा सकते हैं, पूरे पे लगा देंगे और इसको कितनी बार लिख देंगे, इन दोनों का एलसीएम पे कितना आ जाएगा? 10, राइट? आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. अब हम इसको इक्वेशन 1 ना मानकर इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, राइट? ये जस्ट हमने इसलिए किया था कि इक्वेशंस क्या हो जाए, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट? नाउ कम ऑन टू दिस पार्ट. Similar, the same thing we will do with this equation also. हम डेसिमल हटाएंगे, so this will be 4 by 10x plus ये हो जाएगा 5 by 10y and the equals 23 by
10, राइट. अगेन वी विल डू सेम थिंग, इसका और इसका 10 10 का एलसीएम कितना आएगा 10, तो हम क्या करेंगे एक बार लिख देंगे, राइट. सो दिस विल बी एंड दिस विल बी रिटन वन टाइम ओनली, राइट. फिर ये 10 से 10 कैंसिल एंड देन इक्वेशन जो है और सिंपल हो गई, दैट इज 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, राइट. ओके, नाउ ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन थे उस टाइप का. अच्छा, इन प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, यू नीड टू राइट बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. आपको हर क्वेश्चन बताना पड़ेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो यू विल राइट बाय एलिमिनेशन, और उससे अगली एक्सरसाइज होगी यू विल राइट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. नाउ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालेंगे, राइट. इसको ले लेते हैं, तो ठीक है, 3y यही रहेगा, 2x उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x. अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, राइट. नाउ लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3, this is your equation 3. Now we will write substitute value of y, right. इस y की वैल्यू को हम कहा यहां से y की वैल्यू निकाली और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 2, राइट. तो यहां पुट कर देते वैल्यू 4x प्लस 5 इंटू में, राइट. अब जब यहां लिखेंगे y की वैल्यू तो डू रिमेंबर ब्रैकेट आएगा, सो 13 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 23, राइट. सॉल्व कर लेते हैं फर्दर. नाउ दिस विल बी व्हाट, टेक, ठीक है, टेक मल्टीप्लाई इट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ, सो 4x प्लस 5 इंटू 13 विल गिव यू 65 माइनस 5 टू द 10x, राइट. और डिनोमिनेटर में 3 इक्वल्स टू 23, यहां एलसीएम ले लेंगे, राइट. सो व्हाट इट विल बी, 4 3 is 12x, राइट, प्लस 65. डू वन थिंग, ठीक है, इस माइनस 10x को इसके साथ लिख दो, प्लस 65 डिवाइड बाय 23 इक्वल्स टू, डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 23. नाउ 12x minus 10x will give you 2x plus 65, right, and this 3 will get multiplied by 23, so 3 3 is 9 and 3 2 is 6, so 2x equals to, ये 65 उधर जाएगा तो 69 minus 65, so 2x equals to 4 and the value of x comes out to be 2, right. जैसे ही x की वैल्यू हो जाएगी we will circle it. now ठीक है, हमने क्या किया, यहां से y की वैल्यू निकाली, इसमें पुट किया, पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया. कौन से वेरिएबल में, ठीक है, y में, और y की वैल्यू निकल गई. अब इस x की वैल्यू निकल गई, और इस x की वैल्यू को हम कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 3 में. सो यहां पुट करेंगे, किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की. तो वी विल राइट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x in equation 3, right. In equation 3 we will put the value of x, so y equals to 13 minus 2 into 2 by 3, right. so solve करेंगे इसको, 13 minus 2 to the 4, so 13 minus 4 by 3, right. so this will be how much, 13 minus 4 is 9 by 3 and this will be 3, so the value of y is 3, right. okay, so this is the whole question. नाउ अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें क्या होगा, अब जो भी इक्वेशंस होगी हम उसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे, राइट. एंड आई विल सॉल्व अप टू हियर ओनली. उसके बाद द प्रोसीजर इज सेम, y को इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन, ठीक है, निकाल, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल दो, इससे x की वैल्यू हो जाएगी, फिर x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल दो, राइट. इन सिमिलर वे इट विल गो ऑन. सो ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस ओनली. अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या आएगा, ठीक है, इनिशियली इसमें आपको इक्वेशंस बनी हुई थी, बट इन क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड
सॉरी इन क्वेश्चन नंबर थर्ड यू विल नॉट बी गिवन इक्वेशंस डायरेक्टली, आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा, यू हैव टू रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड मेक द इक्वेशन बाय योर ओन, राइट। चलिए सो ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट 6। नाउ वी विल बी सॉल्विंग ओनली, ठीक है, नॉट फुली, ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, राइट। रेस्ट आपको समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, राइट। यू विल डू इट योरसेल्फ। Come to question number first, sixth part, right? So what is the equation? 3 by 2x minus 5 by 3y equals to minus 2, right? ये इक्वेशन है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे बिकॉज हमें इसको सॉल्व करना है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x by 3 प्लस y by 2 equals to 13 by 6, राइट। अब हम इस इक्वेशन में, ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल बना लेंगे। कैसे? एलसीएम लेकर, राइट। अगर पॉइंट में दे रखा है तो डेसिमल हटा के, फ्रैक्शन में दे रखा है तो एलसीएम लेके। सो एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, एलसीएम विल बी 6, सो दिस विल बी 3 3 9x minus 5 2 10y equals to minus 2, राइट। नो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 6 2 12, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहां भी एलसीएम ले लेंगे, 2x प्लस 3y, एलसीएम इज 6 इक्वल्स टू 13 by 6, 6 से 6 कैंसिल एंड दिस इंप्लाइज द इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, राइट। नाउ अगेन आई होप नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ। यहां पर लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड देन आप क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, राइट। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इस 10y को इधर शिफ्ट कर देंगे। सो दिस विल बी 9x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10y। y प्लस का आ गया, इस 12 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 9x प्लस 12 इक्वल्स टू 10y, और यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 9x प्लस 12 डिवाइड बाय 10, राइट। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 3। अब इस y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, राइट। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, राइट, इन इक्वेशन 2, राइट। 2 में पुट कर देंगे तो दिस विल बी 2x प्लस 3, y की वैल्यू ये रही, ठीक है, पुट कर दीजिए, बट बिफोर दैट यू विल पुट द ब्रैकेट 9x प्लस 12 by 10 equals to 13, right? Now this 3 will be multiplied to this and this, so 2x plus 9 3 is 27x plus 3 12 3 is 36 upon 10 equals to 13। एलसीएम ले लीजिए, 20x प्लस 27x प्लस 36 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 13। अब ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 130 के साथ इट विल गेट मल्टीप्लाइड एंड 20x प्लस 27x विल गिव यू 47x प्लस 36 इक्वल्स टू 130, राइट। सो नाउ 47x इक्वल्स टू 130 में से 36 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 94 and 47x, right, cut it by the table of, right, 47 2s are 94, so x equals to 2, right, x equals to 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 3, राइट, जैसे पहले किया था। सो दिस विल बी y इक्वल्स टू, ये यहां, ठीक है, पुट कर देंगे 9 इंटू 2 प्लस 12 by 10, तो ये कितना हो जाएगा, 9 2s are 18 plus 12 by 10. How much it will be? 30 by 10. 0 से 0 cancel. So this will be, so ultimately the value of y is 3. Right? So this is your, ठीक है, this was your whole first part. Now you can do the remaining part yourself. Okay. Now question number second.
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ठीक है, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, राइट, उनको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड उसके बाद एक वर्ड देखिए लिखा हुआ है हेंस, ठीक है, हेंस मींस whenever hence is written in the question that means what कि आपको जो hence जहां पर hence लग जाता है उस क्वेश्चन के दो पार्ट ठीक है बन जाते हैं। फर्स्ट इज प्रीवियस पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट। सो hence means what आप प्रीवियस पार्ट से कुछ सॉल्व करके वो कहां यूज करेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट में, ताकि किसी और की वैल्यू फाइंड की जा सके, राइट। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, hence, तो hence से पहले हमें क्या दे रखी है, टू इक्वेशंस, राइट। इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व, और यहां से वैल्यू निकलेगी एक्स और वाई की, राइट। आफ्टर दैट जो हेंस के बाद पार्ट है, ठीक है, इन दैट वी आर गिवन ए इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो हम यहां पर y की और x की वैल्यू जो यहां से निकली है, राइट, इसमें और इसमें पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू निकाल देंगे, m की, राइट। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, इट इज वेरी सिंपल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 इन विच इक्वेशंस आर नॉट गिवन, वर्ड प्रॉब्लम्स आर गिवन। वी विल रीड द वर्ड प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड इट एंड अपनी खुद की इक्वेशन बनाएंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट, राइट। चलिए, now question number 3, let's say we are doing first part, right। now ठीक, वर्ड प्रॉब्लम समझिए, ठीक है, फॉर अटेम्प्टिंग वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, योर इंग्लिश शुड बी लिटिल बेटर, ठीक है, सो दैट यू कैन रीड द वर्ड प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज बीइंग ट्राइंग टू से। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, राइट। सो क्वेश्चन में, ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला गया है। एक फर्स्ट नंबर है और एक सेकंड नंबर है, राइट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब माइनस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और जो फर्स्ट नंबर है, राइट, वो सेकंड नंबर के क्या है, 3 टाइम्स है, राइट, 3 गुना है, ठीक है। सो हम वी विल लेट लार्जर नंबर को हम क्या मान लेंगे, x, और स्मॉलर नंबर को क्या मान लेंगे, y, राइट। सो बिकॉज 26 कब आएगा, जब बड़े में से स्मॉल सब्ट्रैक्ट होगा, राइट, स्मॉल में से बड़ा नहीं, राइट। तो इसलिए हम फर्स्ट नंबर को क्या मान लेंगे, x, जो कि बड़ा नंबर होगा। तो ठीक है, एंड डू रिमेम्बर वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें पता क्या लगेगा कि व्हाट वी हैव टू लेट x एंड व्हाट वी हैव टू लेट y, जो भी हमें इक्वेशन में फाइंड करना होता है, राइट। लाइक इन दिस क्वेश्चन इट इज बीइंग सेड फाइंड द टू नंबर्स, दैट मींस उन दोनों नंबर्स में से किसी एक को x मानना है, किसी एक को y मानना है। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंगल्स, कि फाइंड द टू एंगल्स, तो फर्स्ट एंगल को x, सेकंड एंगल को y, राइट। तो जो फाइंड करना होता है उसी को हम क्या लेट करते हैं, x एंड y। सो इन दिस क्वेश्चन वी विल let the larger number be equals to x and let the smaller number be equals to y, right, according to question, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस इज हाउ मच, 26। सो लार्जर नंबर इज x, सो x माइनस स्मॉलर नंबर y विल गिव यू 26, राइट। दिस वाज गिवन इन क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड y in terms of x, right। you can also find x in terms of y, ठीक है। it is totally upon you how you want to find it, right। सो क्योंकि हम हमेशा y इन टर्म्स ऑफ x कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां भी y कर लेते हैं, ठीक है। बाय द वे यहां पर x इन टर्म्स ऑफ y ज्यादा इजी रहेगा, राइट। सो अप टू योर विश व्हाट यू वांट टू डू, शिफ्ट दिस y दैट साइड, ठीक है। और यू कैन, चलिए इसमें एक बार एक क्वेश्चन वैसे भी देख लेते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y करके, राइट। सो यहां से हम x को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -5 उधर जाके प्लस y, लेम दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और कंडीशन गिवन है क्या,
कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर के क्या है, राइट, 3 गुना है। तो जो बड़ा नंबर होगा x वो छोटे नंबर के 3 गुना होगा, तो x इक्वल्स टू 3 टाइम्स y। नाउ डन दिस मच, राइट। सो व्हाट वी विल डू नाउ, name this as equation 2. So we will write substitute value of x in equation 2, right? So जो value of x हमारी आई है फर्स्ट इक्वेशन से, उसे हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में, राइट। सो इन प्लेस ऑफ x, राइट, इन सेकंड इक्वेशन वी विल पुट द वैल्यू 26 plus y equals to 3y, right? Now this y will go that side and will become 3y minus y equals to 2y, and this was 26 equals to 26, 2 1 जा 2, ठीक है, and this will be 2 13 जा 6, so therefore the value of y will come out to be y equals to 13, right? Okay, after this what we will do, ठीक है, we will substitute back this value of y in equation 2, right? So we will write substitute value of y in equation 2, right? So x, the value of x will come out to be 3 into what is the value of y, 13. So the value of x is how much, 39, ठीक है। whenever you get the value, ठीक है, उसको सर्कल कर देंगे। नाउ अगर ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह होता तो हम लोग यही छोड़ देते, बट इट इज द वर्ड प्रॉब्लम, सो देयरफॉर वी नीड टू मेंशन कि लार्जर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, राइट। सो देयरफॉर द लार्जर नंबर इक्वल्स टू x, जो कि क्या था 39, एंड द स्मॉलर नंबर वाज 13, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ सिमिलरली लाइक दिस देयर इज सेकेंड पार्ट, ठीक है, लेट्स गो फॉर द सेकेंड पार्ट, ठीक है, एंड क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट यू विल बी सॉल्विंग योरसेल्फ। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। What is being said in the question in second part, the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. So इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया गया है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास कि लेट्स से इफ देयर आर टू एंगल, लेट वन इज x एंड द सेकंड इज y, सो इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री कब बोलेंगे, राइट, व्हेन the sum of these two is how much, 180 degree, right? So that इनमें से कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा, but x plus y कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। इसमें से कोई एक एंगल बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा, राइट। सो सिमिलरली, और हमें फाइंड भी क्या करने हैं, एंगल्स, तो हमें क्या लेट करना चाहिए, लार्जर एंगल को x एंड स्मॉलर एंगल को y, राइट। एंड ठीक है, व्हाट इज बीइंग सेड कि जो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, विच इज नॉट बीइंग सेड, ये आपको खुद अपना कंसाइंस लगा के समझना है, राइट, कि x प्लस वाई कितना होगा, 180, राइट। सेकेंड थिंग, व्हाट इज बीइंग सेड कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे से कितना बड़ा है, ठीक है, दैट इज 18 डिग्री ज्यादा है, राइट। 18, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, माई, ठीक है, आई एम एल्डर अजय, ठीक है, एंड माई ब्रदर इज लेट्स से अनिल, राइट। Now I am saying कि I am elder, right, and he is, ठीक है, so that means if his age is 10, right, and I am saying I am 5 years old elder, so that means what is my age, ठीक है, in 10 I need to add plus 5, right. So similarly जो larger angle है वो कैसे आएगा, छोटे में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 18 डिग्री, right. Okay, let's proceed with the question then. ठीक है, लेट्स से हम x को क्या मान लेंगे, लार्जर एंगल, एंड y को क्या मान लेंगे, स्मॉलर एंगल, राइट। सो वी विल राइट लेट द लार्जर एंगल बी इक्वल्स टू x डिग्री एंड
then and let the smaller angle be y degree, right? Now since angles are supplementary, right? Because we in 9th class we have studied कि what is supplementary. So therefore according to question x plus y equals to कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री. हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y equals to 180 डिग्री minus x, y in terms of x, equation first, right? Now second equation what it is according to question क्या बोला गया था, जो larger angle है that means x वो छोटे से कितना बड़ा है 18, तो छोटे में हम क्या ऐड कर देंगे 18, so we will get a larger angle, right? Name this as equation 2. Now we will write substitute value of y in equation 2, right? So x equals to, in place of y we will write, in this equation in place of y we will write 180 minus x plus 18, right? This minus x will go that side and x it will become plus x, and this will be 180 plus 18, so this will be 2x